Hello everyone and welcome to all the viewers who are there present in the meet and watching this wonderful video about the discussion on education system. And we have 5 members, including me, on this meet to discuss about the education system. And these members are really beautiful by face and have some very intellectual and good memory and have great amount of knowledge. So let's introduce them one by one. The first one is Mr. Gurudev Singh. Mr. Gurudev. Hello everyone, myself Gurdeep Singh and I am very glad to be here in this great discussion about the right education system. Thank you, Mr. Gurudev. Next is Mr. Avinindra Bose. Hello everyone, my name is Avnindra Bose and I'm quite excited to be part of this amazing discussion. Thank you, Mr. Avinindra. Next up is Mr. Piyush. Piyush. Seems like there is some problem with Mr. Piyush. So, Mr. Khomendra. I think I got it. Hello, my name is Piyush Srinivats, and I am very glad to be the part of this beautiful discussion on right education system. Thank you, Mr. Piyush. Mr. Khomendra, please introduce yourself to the audience. Yeah. Hello, everyone. My name is Khomendra Sahu, and I am a part of our esteemed team of Value Education. Thank you, Mr. Khomendra. Since we all are here and our viewers know who we are and our names and our feelings on this meet, let's start with the very first question of today, and that is, what role does peer pressure helps or make on a student while they are in class 11 to 12 and preparing for competitive exams? Mr. Piyush, would you like to start? Well, I think the solution of this problem is that the parents should be more understanding and allow the student to choose their own path rather than just restricting them to certain subject. They should be try their kids to develop a global mindset that would be, breaking these social norms, like stereotype discrimination. I think this will be the very first solution of this problem. Mr. Gurudev. I think that the peer pressure that the society creates can sometimes be beneficial for the students, sometimes not. Like the more peer pressure, one thing is that it forces students to enhance their skills, or we can say that it pushes them to do more hard work. But some students cannot, cannot take more pressure, and they might ended up in depression also. This is one disadvantage. You are right, Mr. Gurudev. Mr. Avinindra, would you like to add something? You felt like adding something? Yeah, that's the nice point mentioned by Gurudev and Piyush. And this question is like a really amazing question. And I would like to add this, that our current society considers good marks as a barrier of success. If you score good, if you score good, you are a topper and everybody will respect you. If you score bad, nobody will give you respect. So, in fact, we are more often compared with Sharma Ji Ka Ladka, as you all know. Yeah. So exactly like JEE and NEET, it is just an entrance test for the colleges, nothing more than that. Just one exam will not decide our future. Like as a student, it creates a lot of pressure, but we just have to do one thing. We have to keep working in our skills. That's what I personally feel. हमारे पास तो अभी 60 to 70 years की life बाकी है. We will get many opportunities in our life to prove ourselves. So keeping all these social pressures and all parental pressures aside, we just have to do one thing. That is, we have to work on our skills and use our skills for the betterment of the society. And I would like to add one more thing, that IITs, NITs, IIITs, it is not only the gateway of success. Like I would like to give an example of Mr. Satya Nadella. Satya Nadella, he completed his graduation with MIT. It would be sounding like Massachusetts Institute of Technology, but it's not. He has completed his graduation from Manipal Institute of Technology, which is a tier 2 private college.
अगर तब सत्या नडेला हार मान जाते कि मेरे को आईआईटी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो आज वो माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ नहीं बन पाते। सो उसमें भी वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से थे, कंप्यूटर हाँ, से ना होके। उसके बाद भी वो माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ इतने बड़े पोस्ट में। तो दैट्स इंस्पायरिंग स्टोरी। सो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ अपनी स्किल्स पे काम करना है। ये प्रेशर वेशर को साइड करके हमको स्किल्स इम्प्रोवाइज करने पड़ेंगे। या बिल्कुल सही बात कही आपने मिस्टर अविनेंद्र। मिस्टर खोमेंद्र, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? Yeah, in my point of view, that a student gets a lots of pressure while he is in 11th, 12th, preparing for a JEE, NEET, etc. Competitive exam. She is in a lot of pressure, uh, pressure by society, by parents. If he or she cannot crack or pass the respectively exams, then she can seen as a failure in a society. That's या थैंक यू मिस्टर खोमेंद्र, यू सेड सम वंडरफुल पॉइंट्स। हम सब ने महसूस किया ये पेरेंट्स और अपने दोस्तों का प्रेशर तो लगता है। सो काफी अच्छे पॉइंट्स मिले हमें इस सवाल पे। तो अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे पहुंचते हैं। वो ये है कि आजकल स्टूडेंट्स काफी बाय हार्ट करने लगे हैं क्वेश्चंस आंसर्स, जो हमारे समय भी होता था जब हम 6th में थे, 5th में थे। दे बाय हार्ट whatever it's given in their copies or books. So do you think it is helping them in becoming a better individual and for the competitive world? Mr. Piyush, would you like to start this time? Well, I agree with your statement. You know, the students are taught subjects which, without giving them the importance of that subject. For example, just imagine the science students are taught economics, but they don't know what's the use of economics in the real life. उससे भी अच्छा एक और एग्जांपल ये हुआ कि समथिंग अराउंड, हाँ, क्लास 2 और क्लास 3 में भी सबको बैलेंस डाइट बताया जाता है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। सब डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि बैलेंस डाइट घर के खाने में कैसे होता है। तो फायदा ही क्या उस बैलेंस डाइट के डेफिनेशन का, जो काम ही ना है। तो मेरा यही है कि रट्टा नहीं मानना चाहिए और ज्यादा इंपॉर्टेंस की वो रियल लाइफ में कैसे काम कर रहा है वहां से एग्जांपल लेके पढ़ाना चाहिए। तो मेरा यही होगा सजेशन। काफी अच्छा एग्जांपल दिया आपने मिस्टर पीयूष। खोमेंद्र जी, आप कहना चाहेंगे कुछ? हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के नीट के हिसाब से हम सबको नॉलेज प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, तो practically ज्यादा होना चाहिए rather than theoretically. But in our school system, we are just theoretically studying all the subjects. So that's create a lots of problem in a future. जैसे हम लोग जैसे बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो वहाँ हमको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ सब स्टूडेंट्स मोर प्रैक्टिकली होके वहाँ पढ़ते हैं और इसलिए वहाँ कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। धन्यवाद मिस्टर खोमेंद्र। मिस्टर गुरुदेव काफी ध्यान से सुन रहे थे और हंस भी रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके पास काफी बढ़िया पॉइंट्स होंगे। I agree with what Piyush and Khomendra said just now. And one more thing I would like to say, that school should be made as a platform where student can enhance their skills, or student can choose a variety of subjects, not just limiting to science or commerce in high school specifically, like subject on psychology, finance, and more like that subjects which are not taught by schools more commonly in these days. And also one thing is that proper training and proper skills should also be taught by the school at the school level, mostly at an early age to the students. जैसे पब्लिक स्पीकिंग सिखाना ही जाता, डायरेक्टली कॉलेज में जाके सीखो। हाँ, ये काफी अच्छे पॉइंट्स हैं। में सिखाया नहीं जाता। विदेशों में काफी कुछ होता है इसे प्रमोट करने के लिए, पर इंडिया में अभी कुछ नहीं होता है। मिस्टर अविनेंद्र, आपके यूजफुल इनसाइट्स काफी काम आएंगे। तो मैं इसको कवर करना चाहूंगा ऐसे कि राइट सेट ऑफ स्किल्स शुड बी टॉट टू एवरी स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट को हमको सही स्किल्स सिखाना चाहिए।
skills and right training should be given at a school so that student can set up confidently in the real world. जैसा कि मेरे friend खुमिंद्र ने बताया, many times a student learns a skill but they don't understand where to apply their skills to gain maximum productivity. Like for an example, मैं अपने भाई का example देना चाहूँगा. वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं 4th ईयर में. सो अगर मैं अपने भाई के, मेरा भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड है, अगर मैं अपने भाई के पास गाड़ी लेके जाता हूँ और अपने भाई को पूछता हूँ कि मेरे क्या प्रॉब्लम है, मेरा गाड़ी कैसे ठीक होगा, मेरे गाड़ी को कैसे ठीक कर पाओगे, सो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसके पास बुकिश स्किल्स हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स है ही नहीं, और वो अपने स्किल्स को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएगा. और मैं अगर सेम बाइक एक 10th फेल मैकेनिक के पास ले जाऊंगा तो वो पहले बाइक को चला के देखेगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. तो उसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं और वो स्किल्स को सही जगह अप्लाई कर रहा है ताकि वो प्रोडक्टिव बने लोगों के लिए. तो मैं यही ऐड करना चाहूंगा इसमें. काफी अच्छा पॉइंट कहा आपने. ट्रायल एंड एरर से काफी चीजें हमें पता चल सकती है. सिंस अब हम ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट कर चुके हैं अपना मीट, सो अब अगले सवाल पे जाते हैं जो हमारी किसी एक बैच मेट ने हमें रिकमेंड किया था. वो ये है कि आप सभी को ऐसा लगता है कि व्हाट वी आर लर्निंग टुडे एंड व्हाट आवर contemporary juniors or seniors are learning today are helping us to become a better individual as per the demands of the 21st century. मिस्टर अविन से शुरू करते हैं. हर बार लास्ट पे बोल रहे हैं तो इस बार पहले मौका मिलना चाहिए. So like our current education system, as you all know, has a lot of loopholes. So my answer to this question will be no. As per my point of view, कि अभी तक हमारे बच्चे इतने तैयार नहीं है कि 21st सेंचुरी के बच्चों को compete कर सके. लाइक इंडियन बच्चों की बात करूं, फॉरेन बच्चों से, हमारे इंडियन बच्चे अभी तक इतने तैयार नहीं है. बट अगर आप यही सेम क्वेश्चन मेरे से 10 साल बाद पूछेंगे तब मेरा आंसर हाँ हो सकता. एक्चुअली रीजन क्या है कि आई हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP जिसे कहते हैं, जो 2020 में लॉन्च हुआ. मुझे उससे बहुत ज्यादा उम्मीद. लाइक आई होप he will do this magic. जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आप लोग को कहूं कि NEP focuses on improvising the coding skills of a student at a younger age, right? Yeah. So coding इस जनरेशन में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि वो दुनिया से कदम मिलाकर बढ़ सके, चल सके. तो जैसे कोडिंग शुरू तो हो गया, बट हमारे पास प्रॉपर टीचर्स नहीं है, ट्रेंड टीचर्स नहीं है. द टीचर्स शुड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोडिंग बच्चों को सिखा क्यों रहे हैं. पहले बच्चों को सबसे बेसिक यही सिखाना होता है कि कोडिंग क्यों सीख रहे हैं, कोडिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है लाइफ में. अगर बच्चे वो ही नहीं जानेंगे तो कोडिंग का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा. वो तो सिंटैक्स जान के बंद हो जाएगा और कोई काम नहीं रहेगा. सो अनटिल एंड अनलेस टीचर्स जब तक ट्रेन नहीं किए जाते अच्छे से, तब तक स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हम नहीं देख सकते. धन्यवाद मिस्टर अविनेंद्र, काफी अच्छे पॉइंट्स रखे आपने. मिस्टर पीयूष, आप काफी इम्पेशेंट लग रहे थे, हो सकता है काफी अगर बस आपके पास. हाँ, अब अगर मैं बस वो जो अभी न्यू पॉलिसी आई उसको साइड में रखूं और हिस्ट्री में देखूं तो ये पता चलेगा कि हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम था वो कभी क्रिएटिव बनाने के लिए आया ही नहीं गया था. वो आया था कि जो ब्रिटिश जो आए थे, जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाया था, वो ये था कि उनको वर्कर चाहिए, ना कि कोई ऐसा आदमी जो उनको आके सजेशन दे सके. इसलिए हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सब फॉरेन से पढ़ के आए थे, ना कि इंडिया में रह के पढ़े थे, क्योंकि यहाँ पे वो चीज करने के लिए तुमको ना ऑप्शन मिलेगा, ना वैसे तुमको नॉलेज दिया जाएगा. तो वो अभी तक रिपीट हो रहा है, जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है. चेंज होने के बाद भी यही है कि टीचर उसी माइंडसेट से हैं तो उसी माइंडसेट से पढ़ाएंगे, चाहे वो इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाए. तो उसके लिए हमें न्यू टीचर्स का रिक्रूटमेंट ज्यादा करना चाहिए प्रीवियस वन से. और इसमें ये होगा कि अगर कोई हमें रोकता है कि तुम्हारी सोच गलत है, कि नहीं तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, तो वाई हमेशा पूछना चाहिए. तो सिस्टम से खुद निकलना पड़ेगा. तो उसको निकलने का यही है कि तुम खुद से पूछो. तो मेरा यही सजेशन होगा कि कभी भी कोई तुमको आंसर नहीं दे रहा, तो तुम्हारे पास आज नेट सबके पास हो चुका है, तो उसका यूज करके निकलना चाहिए. ये काफी अच्छा पॉइंट रखा आपने मिस्टर पीयूष. अविनेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? पीयूष के पॉइंट में ऐड करना चाहूँ, एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ऐसा सबके स्कूल में भी होगा. मेरे स्कूल में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे जो कंप्यूटर टीचर थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सब कुछ बताना, कंप्यूटर के बारे में बताना. वो कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ आते थे, क्वेश्चन आंसर्स मार्क करवा देते थे, एग्जाम में हमको नंबर मिल गए, हम खुश, और वो उनका कोर्स जल्दी खत्म हो गया, उनका प्रमोशन हो गया, वो खुश.
तो इस हाँ चीज को साइड में रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे काफी बार जैसा कंप्यूटर टीचर कंप्यूटर जो साइंस रहते में हैं, हाँ अवनींद्र हाँ ने काफी बार, बोला, वैसे ही काफी बार, हमारे हाँ हाँ, हमारे नहीं नहीं स्कूल आप में बोलिए, आप फिजिक्स बोलिए। फिजिक्स टीचर जो थे वो भी ऐसे ही करते थे। उनको फिजिक्स इतना नॉलेज था नहीं, बस वो आते थे और जो भी इलेबोरेट करते थे वो बुक से पढ़ाते थे और बुक से देख के क्वेश्चन आंसर लिखाते थे, और खुद से कुछ का उनको नॉलेज नहीं था और चले जाते थे। तो क्वेश्चन पूछो टीचर्स, तो उल्टा कर मार जाएंगे लोग। हाँ हाँ ये काफी बार कंप्यूटर टीचर का होता है कि क्योंकि क्वालिफाइड कंप्यूटर टीचर नहीं रहते हैं, वो इंग्लिश टीचर या मैथ्स टीचर किसी को बोल देते हैं कि अब यस, जाके पढ़ा तो बुक से देख के। एक काफी टीचर्स कॉमन चीज है। एंड मोर ओवर मिस्टर खोमे, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। and moreover the teachers that are joining the school are not particularly trained in teaching, what we can say. लाइक अगर वो 9th क्लास या 10th क्लास के लिए भी अगर रिक्रूट होते तो उनमें इतना टीचिंग, इतना उनको ट्रेनिंग पहले लेनी चाहिए। मतलब कि अगर स्कूल उनको रिक्रूट कर रहा है तो ऐसे में हाँ ये पढ़ाने में काफी अच्छा दिक्कत नहीं पॉइंट होगी। है। हाँ ये सही कहा आपने। मिस्टर खोमेंद्र। यू कैन इजीली Uh, I think that today education system well should be more about creating real world, creating real meaningful world that matters to the country as a whole. Because lot of times school we have student do projects. हमें जब हम स्कूल में थे तो हमें बहुत सारा प्रोजेक्ट्स मिलता था करने के लिए। उसमें से ऐसे कई होते हैं, कई बच्चे होते हैं जिन्हें मतलब बहुत सारा क्रिएटिव आइडियाज होता है, वो बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं। लेकिन साल के अंत में होता ये है कि बच्चे को उसका मार्क्स दे दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट को कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। सो फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग नथिंग। मीन्स स्टूडेंट आर brilliant, intelligent, and creative. But that's the thing that teachers should understand the creativity, intelligence of a student. So in yes. our country, that no one can understand a Yes, student जो feelings. खोमेंद्र जी जो बोले मैं उनसे एग्री करने का कि स्टूडेंट्स लोग को मोर क्रिएटिव टाइप का एजुकेशन इम्पार्ट कराना चाहिए स्कूल्स के द्वारा, तभी वो रियल जी वर्ल्ड के लिए मोर क्या बोल सकते हैं कि मोर एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल भी, efficient. दे विल बी मोर सुटेबल। suitable and more convenient. In a convenient way we can ready them for to face the real world, to face the competitive world. आजकल आजकल स्कूल भी एक बिजनेस की तरह देखा जा रहा है, तो कभी कभार उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी रहती है, तो ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं होती। ठीक है, तो अभी तक since till now we have only discussed most of the problems of our current education system. So जैसे जैसे कि हम एंड में आ रहे हैं, तो हमारे लास्ट दो क्वेश्चन इस मीट के फोकस करेंगे ऑन व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव इन द एजुकेशन सिस्टम। सो एक नया टर्म निकल के बाहर आया है, राइट एजुकेशन सिस्टम, जो हम सबने सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। काफी टाइम से प्रिवलेंट है पर अप्लाई नहीं किया जाता है सही से, क्योंकि हमने वो डिस्कस किया कुछ देर पहले कि क्या समस्याएं हैं, what are the problems you are facing. So my next question to all of you members is, what do you think that, and how do you think that right education system will help us in the long run? So I would like to start with Mr. Gurdev this time. The right education system, like it enhances more qualities, like what in Indian way we say sanskar. The right education system imparts more sanskar values to the students, which helps in character development, which helps in creating more happiness like mind to the student, and it generates less pressure on the student. Okay, Mr. Khomendra. Yeah. In my point of view, that every student had a right to education, as all we know. Yeah. But there are lots of students, they cannot get their education because of fees problem. School is मतलब जैसे बोल सकते हैं स्कूल बहुत दूर है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि everyone now, right? yes, there's many family problems,
and many other problems are also. But as we in India, there are two types of schools that are called English medium school and Hindi medium school. After graduating 12th, the job और कॉलेज जो स्टूडेंट लेते हैं वो ज्यादा सीबीएसई से लेते हैं, ना कि मतलब वहाँ सरकार मतलब गवर्नमेंट स्कूल से. लैंग्वेज बैरियर आता है. या लैंग्वेज बैरियर, दैट्स द बिग बैरियर. लैक ऑफ रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफेक्ट करते हैं गवर्नमेंट. Lack of resources for the regional medium schools in India. Yeah, you were right, Mr. Yeah. Gurudev. Mr. Avinendra. So I would like to extend Khomendra's point. मैं खोमेंद्र के point को ही extend करना चाहूँगा. Like according to my point of view, the new education must have the motive quality education for all at affordable cost. सब लोग को education मिले और कम prices में. ये प्राइवेट स्कूल्स में तो पॉसिबल नहीं है. प्राइवेट स्कूल में पॉसिबल क्यों नहीं? क्योंकि उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे रहते हैं, बच्चों को एसी में पढ़ाते हैं और 2 लाख रुपए फीस ले लेते हैं. ये प्राइवेट स्कूल का यही धंधा रहता है. तो हमको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट स्कूल में. So we have to improve the standards of our government school. It must be developed in such a way that it develops the students' skills and mindset. As per my knowledge, government schools must provide the proper atmosphere for holistic development of a child. If we work upon this motto, then India will definitely become the greatest of superpowers. We have to increase, first of all, the quality of education, especially in government school. And like apart from quality of education, we have to improve the infrastructure in the government school. जैसे बिहार के बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, बच्चे बारिश के सीजन में पढ़ नहीं पाते क्योंकि छत से पानी टपकता रहता है, डिस्टर्बेंस होता है. बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बेंचेस नहीं है, बच्चे नीचे दरी पे बैठ के पढ़ते हैं. सो इट इज नॉट अ प्रॉपर एनवायरनमेंट. तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट स्कूल्स का डेवलपमेंट दिल्ली में शुरू हुआ है, तो हमको द दिल्ली मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा. दिल्ली मॉडल जो है वो बहुत फेमस मॉडल है, पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल का इम्प्रोवाइजेशन, गवर्नमेंट स्कूल का प्रॉपर यूज कर रहा है ताकि उससे बच्चे अपलिफ्ट हों. जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे देश में इतने अच्छे होने चाहिए कि बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल के गवर्नमेंट स्कूल में जाए. काफी research. I want to add a point that as we I had read some article in newspaper that in America there are 98% schools are government schools and only 2% schools are private. So that should be our motive in India, that maximum number of schools should be the government school and private school should be less. धन्यवाद खोमेंद्र जी, काफी अच्छे पॉइंट्स और काफी रिसर्च किया आपने. मेन रीजन जाता है हमारी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एजुकेशन पे, जो शायद 2% से भी लेस है अपने जीडीपी के. तो उसको इंक्रीज करेंगे तो उससे थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हेल्प होगा पब्लिक स्कूल्स में. बिल्कुल सही कहा. मिस्टर पीयूष. बाकियों ने तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात कर दिया. मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी क्या किया जा सकता है प्रेजेंट सिनेरियो में, तो वो होगा कि हम लोग मॉरलिस्टिक डेवलपमेंट पे करें. यानी कि जब इंसान को सक्सेस मिल जाए तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे चीजों से ना जाए, तो उसके लिए वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है. अगर वो इंट्रोड्यूस हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा. तो मेरा यही पॉइंट रहेगा इसमें. काफी सही जवाब था. It will be beneficial for the human society. क्योंकि सक्सेस तो बहुत लोगों को मिल ही रहा है, लेकिन वो जो मिल रहा है वो खाली मटेरियलिस्टिक है. डिप्रेशन तो सबको आ रही है. उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए वैल्यू एजुकेशन कॉलेजेस में ऐड करना चाहिए. काफी अच्छा पॉइंट था. और इसी से रिलेटेड हमारा आज के मीट का सबसे आखिरी सवाल भी है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन आवर एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ. क्योंकि हमें स्कूलों में मॉरल साइंस की बुक होती है, कुछ अच्छी अच्छी स्टोरियां, पोएम्स रहते हैं, हम पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाता है. आपको क्या लगता है कि कितना अच्छे से ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए हमारे लाइफ में और एजुकेशन सिस्टम में? मिस्टर गुरुदेव. आई थिंक जो मॉरल साइंस स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाता है बचपन में, जैसे 3rd क्लास 1 to 5 मोस्टली स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उनमें उनको पोएम रीड कराने के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल भी कुछ ऐसे दिखाना चाहिए, या कुछ प्रोजेक्ट्स उनको देने चाहिए बनाने के लिए. क्योंकि पोएम्स ऐसे रीड कराने से कुछ इतना डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा, या कोई इसका फायदा नहीं होगा.
बस बच्चे पोएम रीड करेंगे और उनको याद करेंगे और एग्जाम में लिखेंगे, जैसे काफी सही बात कहा आपने। तो ये एक है। मिस्टर पीयूष। मेरे ख्याल से वैल्यू एजुकेशन का सबसे पहला मोटिव होता है कि इंसान को जानवर से अलग करना। उसके लिए जानवर बस खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंसान तो सोचता पहले, खाता बाद में। तो उसके हिसाब से ये चीज हमें क्या कहते हैं, हर एक चीज से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि रिजल्ट को लेके इतने ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बताना चाहिए कि सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शन है। भले सोसाइटी में क्या हो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है कि तुम नीचे हो, तुम्हारा रिजल्ट नहीं अच्छा आया, तुम्हारे दोस्त का ज्यादा अच्छा आ गया, देखो कहाँ चला गया। तो वो तो बस अभी एक ही रिजल्ट है, बाकी रिजल्ट बचा हुआ है। तो वो सब प्रैक्टिकली बताना चाहिए। तो वैल्यू एजुकेशन के टीचर कर सकते हैं। तो मेरा यही रहेगा। काफी सही बात कहा। लाइफ काफी लंबी है, काफी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। अविंद्र जी ने पिछले कुछ सवालों में इसका जवाब से कहा था कि काफी टाइम मिलता है, 70-80 साल। मिस्टर खोमेंद्र। Yeah. In my point of view, the value education gives us happiness, prosperity, and teaches in life in harmony. And the main point that is gives sanskars that we need in this present society to respect each other, etc. As we are learning in college, that जैसे हम अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं कि हाउ टू प्रिवेंट सुसाइडल थॉट्स व्हाइल दैट्स कम ड्यू टू स्ट्रेस, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, एंड बहुत सारी चीजें। मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे पहले की जो हमारी एंशिएंट इंडिया की जो एजुकेशन थी, वो धर्म के बेसिस थी, जिसमें सबको समान पहले किया जाता था। उसके बाद जो जो आप बेनिफिट कर रहे हो, कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उनके लिए जो नीचे हैं सोसाइटी में। लेकिन आजकल ये कि 1 रुपया जहां से मिल जाए फायदा है, बाकी का क्या ही है। अब टीचर ऐप पढ़ा के चला जाए, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि अब नहीं है। तो मैं इसमें ये काफी पॉइंट सही ऐड बात करना कहा आपने। चाहूंगा। ये सब इनडिसिप्लिन काफी बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स के अमंग। हम नोटिस करते रहते हैं ये सब चीजें, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट्स हैं। आई वांट टू ऐड अ पॉइंट दैट आज के जमाने में सब अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, ना कि दूसरे के बारे में। यस, इंसान बहुत खुदगर्ज सही हो कहा गया। आपने काफी। हाँ बिल्कुल, क्या उर्दू शब्द का यूज किया गुरुदेव जी ने, पूरा आग लगा दी उन्होंने मीट में। ठीक है, ये तो काफी इनफॉर्मल हो गया। लास्ट मिस्टर अभिनेंद्र जी। एंडिंग नोट में अगर बात करें तो मैं बोलना चाहूंगा वैल्यू एजुकेशन के बारे में। लाइक वैल्यू एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एजुकेशन सिस्टम because this is the only subject in which a student can be taught to have respect towards society, to know their moral and cultural values, to have self discipline. जब तक हम सोसाइटी को रेस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, until and unless वैल्यू एजुकेशन का कोई काम ही नहीं आएगा। तो हमको वैल्यू एजुकेशन एक ऐसे तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम उसको सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज कर सकें। As in our school, as school is our second home, so this is the place where every child can learn their values that will help them to contribute towards society. So it is the only way in which a student can develop their interpersonal skills. It will definitely give all the students a positive direction to shape their future. I think it develops the character and personality of the students at a great extent. On an ending note, I would like to say that the very purpose and main function of value education is the development of an all-round and well-balanced personality of the students, and also to develop all dimensions of the human intellect so that our children can make up our nation more strong. Yeah, a well-round development of any student or any child is very necessary for him to be a better individual in the future. So ये हमारे पास सवाल आज की मीट के खत्म होते हुए, और कुछ ही देर में हमें आपको गुड बाय कहना पड़ेगा। फिर नहीं पता कब मुलाकात होगी, आपके चेहरे देखने कब मिलेंगे। मिस तो किया जाएगा, पर काफी मजा आया। होमेंद्र जी को भी काफी मजा आया होगा। अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, पर उन्होंने काफी अच्छे से अपने पॉइंट यूज रखे, जिसके लिए हमें भी काफी मजा आया। गुरुदेव जी भी बीच बीच में स्माइल करते रहे।
पीयूष जी ने भी काफी इंटेलेक्चुअल आंसर्स दिए और अवनिंदर जी ने काफी रिसर्च करके खोद के फैक्ट्स निकाल के पेश किए। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर एट द मीट एंड making my time useful and giving me some information on this. And I hope the viewers will enjoy whenever they watch this video. Thank you. Thank you, everyone. Yeah, thank you. Thanks everyone. Thank you, everyone. Thank you. स्टॉप कर दे, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे।